أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 11 پہ ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماء، حروف اور افعال کون کون سے ہیں۔ واو حرف ہے، واو حرف اذا اسم ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، شرط کا بھی معنی دیتا ہے، اس لیے اس کو ہم اذا ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں بھی کہتے ہیں۔ قیلہ فعل ماضی مجہول، لہم لام جو ہے حرف جار ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے تو یہ لہم بن گیا اور یہ جار مجرور بن گیا ہے۔ لا حرف ہے، لائی نہیں ہے یہاں پر۔ تفسدو فعل مضارع ہے اور عقف ہوا ہوا ہے۔ عقف ہوا ہوا میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے۔ فی الارضی، فی حرف ہے، حرف جار ہے، ارض اسم ہے تو یہ فی الارضی جار مجرور بن گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قالو، فعل ہے، قالا قالا قالو تیسرا صیغہ ہے۔ فعل بفاعل ہے، ہم فعل بفاعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہوتا ہے تو ہم آگے اس کا فاعل ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیونکہ تیسرا صیغہ ہے تو ہم اس کو فوراً ہی یہاں پر فعل اور فاعل تصور کر لیں گے کہ اس میں فاعل موجود ہے جو کہ واو کی شکل میں۔ اوکے، انما جو ہے یہ کلمہ ہے اور اس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں گے، اور یہ مجموعہ ہے دو حروف کا، انا اور ما کا، یہ دو حروف کا مجموعہ انا اور ما۔ اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں کیونکہ یہ کل جملے میں زور پیدا کر دیتا ہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا کام کرتا ہے ہمیں پتہ ہے۔ انا جو ہے، انا کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو اون کر لیتا ہے اور رفع سے نصب کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو انا کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہے انا اس پہ اثر نہ ڈالے تو پھر انما استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آنے والا اسم انا کا اسم نہیں کہلاتا، اس کے بعد آنے والی خبر انا کی خبر نہیں کہلاتی، بلکہ وہ سمپل مبتدا اور خبر کہلاتی ہیں اور رفعی حالت میں رہتی ہیں گی، یعنی انا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، انا اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع سے نصب نہیں کر پاتا۔ انما جو ہے تو جو اسم آتا ہے وہ مبتدا اور خبر ہی رہتا ہے گا، اور انما حصر پیدا کرنے کے علاوہ یہ اسمیہ جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فعلیہ جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ انا جو ہے وہ صرف اور صرف اسمیہ جملوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد آتا ہے نحنو، اس کے بعد آ رہا ہے نحنو ہمیں پتہ ہے اسم ہے، اور مسلحون جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اوکے، اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا لا تفسدو کو دیکھ لیتے۔ لا تفسدو میں ہم نے لا کو کہا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ لائے نہیں ہے، اس کو ہم نے لائے نہیں کہا ہے۔ کیوں لائے نہیں؟ اس کا ہے کہ بیسیکلی یہ تفسدونا تھا، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے گا اور اس کو عقف کر دیا گیا ہے گا۔ اگر یہاں پورا کا پورا تفسدونا ہوتا تو پھر یہ لائے نفی ہوتا، لائے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اگر یہ نفی کب کہلاتا، لائے نفی کب کہلاتا کہ یہاں پر یہ عقف نہیں ہوتا بلکہ پورا کا پورا تفسدونا ہوتا، لیکن کیونکہ یہ عقف ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لائے نہیں ہے اور یہ فعل مضارع جو ہے عقف ہوا ہوئے گا۔ تو یہاں یہ ایک بات اہم تھی۔ اچھا بھائی، اس کا جو حرف مادہ ہے وہ ہے اس کا فا، سین اور دال، اس کا حرف مادہ ہے۔ اگر اس کو ہم باب نصرہ میں ڈالتے ہیں، باب نون میں ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے فسادہ یفسدو فسادن، فسادہ یفسدو فسادن۔ یہ فسادن جو ہے، جو اس کا فسادن یہ جو ہے یہ صلح کی الٹ ہے، صلح کی ضد ہے، اس میں ذات ہے اور یہ صلح کی
उलट है कि यफसुदू का मतलब होता है कि किसी निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ जाना, तवाज़ुन बिगड़ जाना, और ये फ़ेल लाज़िम है। तो ये बाब नसरा में यानी मु सुलासी मुजर्रिद में, जब ये सुलासी मज़ीद में जाता है, सुलासी मज़ीद फ़ी में जाता है, तो ये बाब फ़ाल से बनता है और ये बनता है अफ़सदा युफ़सिदु। अफ़सदा युफ़सिदु इफ़सादन फ़हुवा मुफ़सिदुन। रिपीट करती हूँ मैं, ये बाब फ़ाल में जब जाता है तो बनता है अफ़सदा युफ़सिदु इफ़सादन फ़हुवा मुफ़सिदुन। किससे बनता है ये? अस्लमा युस्लिमु से। कि जब ये बाब नून से आता है तो ये लाजिम फ़ेल बनकर आता है और इसका मतलब होता है किसी निज़ाम का, किसी नज़्म का तवाज़ुन बिगड़ जाना। जब ये बाब इफ़आल में डाला जाता है तो ये मुतअद्दी फ़ेल बन जाता है और फिर उसके मायने बन जाते हैं किसी नज़्म का तवाज़ुन बिगाड़ देना। जब लाज़िम में था तो बिगड़ जाना इसकी मीनिंग होती थी, और जब ये इफ़ाल में और मुतअद्दी बन गया तो इसकी मीनिंग क्या बन जाती है? इसकी मीनिंग बन जाती है निज़ाम का बिगाड़ देना। तो अब हम इसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। वाव को हमने हर्फ कह दिया था, इज़ा को हम इज़ा शर्तिया और ज़र्फ़िया कहकर गुज़र जाते हैं। असल में क्या है कि इज़ा जो है वो ज़र्फ़ है और शर्त के मायने इसमें मौजूद होते हैं। लिहाज़ा इसे जब ज़र्फ़िया शर्तिया कहा जा सकता है, यानी इसको ज़र्फ़िया शर्तिया कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जब इज़ा को ज़र्फ़िया शर्तिया कहा जाता है तो फिर हम क्या ढूँढते हैं? हम ये ढूँढते हैं कि इसके बाद आने वाला जो जुमला होगा उसको हम कहेंगे कि वो शर्त है, और उसके बाद दो जो नेक्स्ट जुमला होगा उसको हम जवाबी शर्त कहेंगे। तो इस तरह से इज़ा के बाद हम शर्त ढूँढते हैं और फिर जवाबी शर्त ढूँढते हैंगे, और फिर शर्त और जवाबी शर्त दोनों मिलकर जुमला शर्तिया बनाकर जुमला फ़ेलिया या जुमला इस्मिया बना के वो पूरा का पूरा हमारा जुमला शर्तिया बना देते हैंगे। तो अभी हमने इसको, क्योंकि इज़्ज़ा ज़र्फ़िया शर्तिया का है, तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारा शर्त क्या है। तो अगला जो पहला जुमला होता है वो शर्त होता है। तो अब इसका हम शर्त को ढूँढ रहे हैं कि शर्त हमारे पास क्या है। क़ीला, क़ीला हमें दिख रहा है, क़ीला यहाँ पर क्या है? हमारा फ़ेल माज़ी मजहूल है। क़ीला के वज़न पे या यूँ कह लें फ़ीला के वज़न पे जो भी फ़ेल हमें नज़र आते हैं, जैसे क़ाला से, तो क़ाला से हम बना देते हैं क़ीला। इसी तरह ज़ादा से ज़ीदा, जाआ से जिया, साक़ा से सीक़ा। तो ये तरतीब याद रख लें कि फ़ाला के वज़न पे जो कुछ भी हमें नज़र आता है, यानी क़ाला जैसे है, क़ाला, ज़ादा, जाआ, साक़ा, तो इनका जो मजहूल बनता है तो वो फ़ाला से फ़ीला, क़ाला से क़ीला बन जाता है। तो यहाँ पर अभी किस तरह से बना इंशाअल्लाह ये बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हमें याद रखना है कि क़ाला से क़ीला बना और ये फ़ेल माज़ी मजहूल हमारा यहाँ पर बन गया है। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हमारे पास फ़ेल क़ाला था, क़ाला होता है, काला, तो जब ये कहा जाता है कि काला उसने कहा, तो कोई बात कही जाती है। तो हमने क्या सीखा था कि काला का जो मक़ूला होता है, काला के बाद जो जुमला कहा जाता है, जो बात कही जाती है, वो उस काला का हमने उसको मफ़ूल बनाया था। तो क़ीला में क्या रूल होगा कि क़ीला में जो बात कही जाएगी, तो अब हमें पता है क़ीला मजहूल है, तो मजहूल में तो हमें पता है कि नाइबुल फ़ाइल होता है, मजहूल में मफ़ूल नहीं होता बल्कि नाइबुल फ़ाइल होता है। तो क़ीला में जो बात कही जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? हम उस क़ीला का नाइबुल फ़ाइल उसको बनाएँगे। तो यहाँ हमारे पास जो फ़ेल मादी मजहूल है, यहाँ पर लहुम जो है जार मजरूर बन के फ़ेल माज़ी का मुताल्लिक़ बन रहा है। यहाँ पर क़ीला जो फ़ेल मजहूल है, लहुम उसके लिए मुताल्लिक़ बन रहेगा, और उसके जो नाइबुल फ़ाइल बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो मक़ूला है, ये पूरा का पूरा मक़ूला उसका नाइबुल फ़ाइल बन रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो क़ीला जो है यहाँ पर हमारे पास फ़ेल मजहूल है, लहुम उसका मुताल्लिक़ है, और ये पूरा सेंटेंस जो है, ये पूरा सेंटेंस ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी जो पूरा मक़ूला है, ये इस क़ीला फ़ेल के लिए क्या बन रहा है? इस क़ीला फ़ेल के लिए जुमला फ़ेलिया बनकर नाइबुल फ़ाइल बन रहा है। तो फ़ेल मजहूल, मुताल्लिक़ और नाइबुल फ़ाइल, ये पूरा का पूरा जुमला फ़ेलिया शर्तिया बन रहा है। अब यहाँ पर जो इसका नाइबुल फ़ाइल है, जिसको हमने नाइबुल फ़ाइल कहा है, इसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि नाइबुल फ़ाइल किस तरह से है। ये किस तरह से नाइबुल फ़ाइल है, हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि ला तुफ़सिदू, ला लाइ नफ़ी, लाई नहीं, ला लाई नहीं,
तुफसिदु फेल ब फाइल और फेल नहीं है ये। और इसको हमने फेल ब फाइल क्यों कहा है? इसलिए कि ये जो है ना तो पहला सीगा है और ना ये चौथा सीगा है। तो जब पहला और चौथा सीगा होता है तो हम आगे उसका फाइल ढूंढते, लेकिन क्योंकि ये ना पहला सीगा है और ना ये चौथा सीगा है तो अब हम इसको डायरेक्ट इसका फाइल इसके साथ ही हम कह देंगे। तो ये ला तुफसिदु पूरा का पूरा फेल नहीं, और ये ला लाए नहीं तुफसिदु फेल ब फाइल, और उसका मुताल्लिक़ जो है फ़िल अर्दी जो है ये इसका मुताल्लिक़ बन गया। तो ला फ़ेल नहीं, यानी अपने फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर और अपने मुताल्लिक़ यानी जार मजरूर फ़िल अर्दी के साथ मिलकर पूरा का पूरा जुमला ये फ़ेलिया बना। ये पूरा का पूरा जुमला फ़ेलिया बना और फिर ये पूरा का पूरा जुमला फ़ेलिया फ़ेल म मजहूल क़ीला के लिए, फ़ेल मादी मजहूल क़ीला के लिए नाइबुल फ़ाइल बना। ये जो हमारा जुमला फ़ेलिया भी हमने बनाया था, ये जुमला फ़ेलिया बनकर नाइबुल फ़ाइल किसके लिए बन गया? ये जुमला फ़ेलिया नाइबुल फ़ाइल बन गया। क़ीला फ़ेल माज़ी के लिए, फ़ेल माज़ी मजहूल के लिए नाइबुल फ़ाइल, और उसका मुताल्लिक़ जो है ये हमारा जार मजरूर बना। तो क़ीला फ़ेल माज़ी मजहूल अपने नाइबुल फ़ाइल ला तुफ़सिदु फ़िल अर्दी के साथ मिलकर और अपने मुताल्लिक़ जार मजरूर लहुम के साथ मिलकर पूरा का पूरा जुमला फ़ेलिया बन गया, जुमला फ़ेलिया शर्तिया बन गया, और जुमला फ़ेलिया शर्तिया बनकर ये ईज़ा के लिए शर्त बन गई। तो अब ईज़ा का शर्त हमें मिल गई। अब हम क्या देखेंगे कि शर्त हमें मिल गई तो अब जवाब शर्त हम ढूँढेंगे इसकी कि इसकी जवाब शर्त क्या है? तो आया नंबर 11 का जो हमने 2 हिस्सों में बाँटा था, तो पहले हिस्से को हमने क्या कह दिया? पहले हिस्से को हमने कह दिया कि वो शर्त है। अब हम दूसरे हिस्से को देखेंगे कि दूसरा हिस्सा जवाब शर्त बनता है कि नहीं बनता। दूसरे हिस्से में सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कालू। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? कालू। कालू को भी अगर हम गौर करें तो ना तो ये पहला सीगा है काला, काला, कालू। हमारे पास क्या बन रहा है? काला, काला, कालू। तो हमें तो नज़र आ रहा है कि माज़ी मारूफ़ है और तीसरा सीगा है। तीसरा सीगा है तो इसका मकसद क्या हुआ कि इसमें इसका फ़ाइल भी मौजूद होगा जो कि हमें वाव की शक्ल में नज़र आ रहेगा। तो इसीलिए हमने इसको कह दिया फ़ेल बा फ़ाइल। इन्नमा अगेन कलमा हसर हमें पता है इन्ना प्लस मा से मिलकर बना है। मा जो है माए काफ़ा कहलाता है। इन्ना इन्ना जो है जब अकेला आता है तो उसके बाद जो है वो क्या आता हैगा? इन्ना का इस्म आता हैगा। जब इन्ना का इस्म हमें नस्बी हालत में नज़र आता हैगा, जबकि हमें यहाँ पर इन्ना का इस्म हमें यहाँ कोई चीज़ नस्बी हालत में नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? इन्नमा की वजह से। इन्नमा जब आता है तो वो इन्ना के असर को रोक देता है और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो मुब्तदा और ख़बर ही कहलाता है। वो इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर नहीं कहलाता। तो इन्नमा कलमा हस्र। अब उसके बाद हमें नाहनु नज़र आ रहा है। नाहनु जो है यहाँ पर हमारा मुब्तदा है और मुस्लिहून जो है वो उसकी हमें खबर नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा मुस्लिहून को यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका जो रूट वर्ड है वो है स्वाद लाम हा। इसका ये जो मादा है वो स्वाद लाम हा है और ये किस तरह से बना है? ये बना है असलहा युस्लिहु इस्लाहन फहुवा मुस्लिहुन, यानी असलमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन से ये निकला है। तो हमें क्या बना? असलहा युस्लिहु इस्लाहन फहुवा मुस्लिहुन। मुस्लिहुन जो है, मुस्लिहुन वाहिद मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर है, वाहिद है। तो इसका जो मुसन्ना होता है वो होता है मुस्लिहानी और इसकी जमा होती है मुस्लिहूना। इसकी जमा क्या हुई? मुस्वाद है ये, मुस्लिहूना, ठीक है? और इस्मुल फ़ाइल है, ये हमारा इस्मुल फ़ाइल हैगा। तो इस्मुल फ़ाइल हमने इसको पहचान लिया। किस तरह से पहचाना कि जब भी मीम पेश वाली होती है, इस्मुल फ़ाइल की मीम पेश हो वाली होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है सलासी मज़ीद से है, और क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये असलहा युस्लिहु इस्लाहन फहुवा मुस्लिहुन से बना है, तो ये सलासी मज़ीद फ़ी से हैगा। अच्छा, अब हम इसको दोबारा एक नज़र देख लेते हैं कि क़ालू फ़ेल ब फ़ाइल, क़ालू फ़ेल ब फ़ाइल फ़ेल माज़ी अपने मुब्तदा
تو यहाँ पर नहनु नहनु मुस्लिहून जो है मुब्तदा और खबर बनकर जुमला इस्मिया बन रहा है, और जुमला इस्मिया बनकर ये क्या बनता है, ये मफूल बन रहा है। तो कालू फेल ब फाइल अपने मफूल नहनु मुस्लिहून के साथ मिलकर जवाब शर्त बन गया। और इसके क्या मायने हो रहे हैं कि कालू कालू वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब इन्नमा जो आया है उसने जुमले के मीनिंग में जोर वाली तब्दीली पैदा कर दी, यानी क्या तब्दीली पैदा किया, जोर पैदा कर दिया कि जब उनसे कालू वो उन्होंने कहा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो हैं जो हम सुलह करने वाले हैं, यानी हम ही तो सुलह करने वालों में से हैं। तो इन्नमा की वजह से जो है यहाँ पर एक हसर पैदा हो गया। तो ये हमारा जवाबी शर्त हो गया। अब अगर हम देखें कि पहला जुमला और दूसरा जुमला यानी शर्त और जवाबी शर्त, जो हमारा पहला जुमला था ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास शर्त था। वाइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी, और जब उनसे कहा जाता है क्योंकि मजहूल है तो इसलिए हम कह रहे हैं कहा जाता है उनसे, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी, जमीन में फसाद मत मचाओ, जमीन में फसाद मत पैदा करो, जमीन में फसाद ना करो। कालू तो वो कहते इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम ही तो हैं सुलह करने वाले। तो जो हम इस तरह से ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि हम ही तो हैं, तो ये इन्नमा की वजह से हुआ, इन्नमा ने इसमें एक जोर पैदा कर दिया। तो पहला जुमला हमारा शर्त बना, दूसरा जुमला हमारा जवाबी शर्त बना। तो ये शर्त और जवाबी शर्त बनकर मिलकर पूरा का पूरा जुमला शर्तिया बन गया, यानी वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद पैदा ना करो, वो कहते हैं हम ही तो हैं जो कि सुलह करने वाले हैं, यानी हम ही तो सुलह करने वालों में से हैं। तो इंशाल्लाह आयत नंबर 11 मैंने मुख्तसरन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिएगी। तो इसके साथ हम अपना यहाँ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।